So hello everyone. Recently I had a conversation with पीयूष खंडेलवाल सर और जो कि यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो कि बीसीए से एमसीए में आते हैं या फिर बीएससी में आते हैं, तो उनके जो दो मेजर डाउट्स होते हैं कि यार कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है हमारी प्लेसमेंट्स के लिए, और यार दूसरा डाउट जो कि यार ये होता है कि जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं एमसीए में या फिर जो जिसे हम कह सकते हैं नॉन कोडर्स बैकग्राउंड से आ जाते हैं सीधा डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में, तो यार उनके लिए ये डाउट होता है कि वो कैसे कोप अप कर सकते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में। तो यार आज की इस पूरी वीडियो में हमारी यही डिस्कशन होने वाली है। तो यार आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो यार ज्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू सर इज दैट मेनी स्टूडेंट्स here are from non-CS background like BCom, BSc Maths, BSc Physics or BSc Chemistry. So how can they excel in placements? So any guidance or any roadmap for them? Yeah, this could be quite typical question, right? Because what happens is when you are from non-CS background and you are targeting an IT company, right? That means either you have seen some of your batchmates or some of your friends that they are getting good packages. Either you are attracted towards the good packages that your friends are getting, your relatives are getting, right? But it was not your choice. So you want to get into this field because of those like what advantages, what perks your friends are getting, right? But if this is the case, you, like I must say, you are not doing there are very less number of chances that you will make through it, right? But yes, if it is clear to you from the first year only, you have taken exam like entrance into BSc something, right? And you know that I would be going into some IT company, then you can plan your years. Like the preparations has to start from the beginning only. It can't be done like, because it becomes very typical. You cannot prepare for an IT company in just 2 or 3 months. It will take time, right? And when you will give certain time, certain amount of time required for certain concepts, then yes, clearing these companies will become very easy because they are not bounded. They don't want the students only from CS background. They are open. Like if you are good at coding and you belong to chemical, does not matter to these companies, right? They will allow you to enter. So they are not prohibiting you. They are not stopping you to come in, right? But the thing is, are you prepared? Are you prepared to fight with those CS students who are also appearing for those interviews? So your preparation has to be more than the CS ones, because see, for companies, two people are coming to me, one from CS, one from non-CS, right? I will definitely prefer CS1 because I have that coding work for me, right? My preference would never be the non-CS1 until and unless you prove that you are better than that CS1 who is applied, right? So your preparation has to be harder, your preparation has to be better, and for that you need to have a plan, and that plan could be that you need to start working on certain programming things. You need to pick up certain programming language and have a very good experience on it, have a very good projects developed on it, first thing, right? सो इन द मीन वाइल यार यहाँ पर पूरी कोडिंग की ही वार्तालाप हो रही है मेरे बीच में और पीयूष सर के बीच में। तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर और भी डाउट होता है कि यार ये कोडिंग की बात तो चल रही है लेकिन हमारे पास सोर्स क्या है पढ़ने के लिए। तो यार आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट कोडिंग निंजास, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट लीडिंग कोडिंग एजुकेशन कंपनी एंड हैज टॉट अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स। और यहाँ के जो सारे टीचर्स हैं यार वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं एंड हैव वर्कड विद फेसबुक एंड अमेज़न। मेरे खुद के काफ़ी सारे दोस्तों ने यार कोडिंग निंजा से कोर्स लेके काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट निकाली है। जहाँ तक बात की जाए यार कोर्स कंटेंट और स्ट्रक्चरिंग की, तो यार काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरे कोर्सेज का इन्होंने। और जहाँ तक बात की जाए यार क्वेश्चंस की, तो यार अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चंस इन्होंने पूरे क्यूरेटेड एक लिस्ट बना रखी है, विच इज़ फ्रॉम अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेनी अदर कंपनीज। एंड यहाँ पर यार काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि यार सारे लोग वीडियो तो दे देते हैं, काफ़ी हमें साइट्स पे वीडियोस मिल जाती है, लेकिन हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। तो यार यहाँ पर ये इन्होंने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि आपकी डायरेक्ट 1-to-1 मेंटरिंग होगी। तो यार जो कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं वो है फॉर C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड डेटा साइंस। तो यार ये काफ़ी बढ़िया कोर्सेज हैं और आप यहाँ पर इनके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो और यहाँ पर जिन्होंने कोर्सेज लिए उनकी स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ
यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और इनकी वेबसाइट के लिंक पे जाना है और आपको डायरेक्टली 20% ऑफ मिलेगा ऑन एवरी कोर्स ऑफ कोडिंग निंजा. सो डू चेक आउट कोडिंग निंजा's वेबसाइट. Then you need to work on, see, simply coding won't help. You need to be into development as well. So if you have worked on you have developed certain applications, mobile applications, it could be web applications, right? It will give you an advantage to crack, like to showcase in your resume and impress the interviewer or the one who is looking, the target, looking to recruit you. Right, so you have to make your resume impressive with your, like today it has become very easy, right? You can participate in different events on the code shifts. You can showcase your stars, right? I am 5-star, so I won't be checking you out, right? If you are 5-star coder at code shift, I can easily say yes, you might be coding, you might be participating in competition, and gives me the first impression, yes, this person should be given the chance to move to next round, right? And your resume will be filtered. And if you have developed certain projects, certain applications which actually helps user to visualize your coding skills, then yes, again you will get the chance. So first thing is you need to make your space where all the CS people are there. If you want to make the space, your resume should have those skills or those projects showcasing your skills, right? And then after getting that, getting this first step, when you go through this first step, right, then you become equal to participate in those coding competitions with non-CS students as well. And yes, if you have worked hard on these programming parts and the development parts, you will be able to crack it. It's not very tough, I can assure you this. But if you will give it a certain amount of time that is required, right, then definitely it will be very easy for you. It is not going to be very tough. So thank you, sir, for giving such plenty of information to the non-CS background students. So my next important question to you, which programming language is best for placements? Because many students are really confused that should they learn C++ or Java or Python for placements, and they should code in that language. So what are your opinions on that? I totally agree with you. This is again a major confusion among the students, right? तो पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, when you are going to be computer science student, right, you are going to work in IT industry, तो इस confusion को निकाल दीजिए कि मैं किस लैंग्वेज पे बाउंड रहूँ. आपका स्किल सेट बाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि आज अगर आप C++ या जावा पे या पाइथन पे काम कर भी रहे हो, तो हो सकता है जब आप इंडस्ट्री में मूव करो तब तक गो, एयरलैंग और अदर लैंग्वेजेस माइट बी देयर इन द मार्केट. तो यू नीड टू बी ओपन फॉर, क्योंकि आप भी अगर आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम किया है तो आई कैन टेल यू आपको डिफरेंस ज्यादा मिलेगा नहीं. थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, बाकी वर्किंग फंक्शन कॉल कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वेरिएबल्स कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी में, हीप में, स्टैक में कैसे स्टैक फ्रेम्स बनते हैं, ठीक है, मेमोरी में हीप में कैसे ऑक्यूपाई होती है, रन टाइम मेमोरी, ठीक है, मतलब डायनामिक मेमोरी कैसे एलोकेशन होता है, स्टैटिक मेमोरी का एलोकेशन कैसे होता है, जनरली द थिंग्स आर सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है. वो उसको अगर मैं छोड़ दूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक वर्किंग जो है वो लगभग सिमिलर होता है, ठीक है. अब मेरे को ना बाउंड नहीं करना अपने आप को किसी भी एक लैंग्वेज के लिए कि भैया मैं C++ का प्रोग्रामर हूं, C++ ही करूंगा. क्योंकि अगर आप आईटी में हैं तो आप देखिए, मोबाइल की मैं बात करता हूं, मोबाइल के जो वर्जन्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड्रॉइड के, राइट, हर 6 महीने में 8 महीने में आपको नया वर्जन देखने को मिल जाता है. तो अगर आप ये बोल दो नहीं मैं तो एंड्रॉइड के जेलीबीन पे ही काम करता था, जेलीबीन का डेवलपर हूं, तो कंपनी आपको तुरंत निकाल के बाहर कर देगी. जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, यू कैन नॉट स्टिक टू समथिंग. आज आप बोल सकते हो नहीं मैं C++ प्रोग्रामर हूं, C++ में कोड करूंगा, ठीक है, लेकिन जब आप कंपनीज में चले जाते हो तब आप स्टिक नहीं हो सकते एक चीज पर. आपको नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के लिए तैयार होना होता है. और आईटी के संग ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोल सकता हूं या मैं इसको अच्छी चीज भी बोलता हूं, मैं तो इसको पॉजिटिव वे में लेता हूं कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं हमेशा नया सीखने के लिए और नया करने के लिए, ठीक है. तो पहली चीज आपको बाउंड नहीं करना, अपने आप को ये सोचना नहीं है कि मैं एक ही लैंग्वेज पे काम करूंगा. अब अगर बात आती है कि प्लेसमेंट के लिए मुझे तैयारी करनी है तो मैं किस पे करूं, तो मेरी जो चॉइस रहती है, अगर आप देखोगे मेरे जितने भी सेशंस हैं मैं उसमें यही बोलता हूं, आप अपने फर्स्ट ईयर में पाइथन सीख लीजिए, ठीक है. जब आप फर्स्ट ईयर में पाइथन सीखते हो ना तो आपको एक चीज पता लग जाती है कि इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान है चीजों का. आप देखोगे सेकेंड ईयर में ही आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने लग जाओगे. जब आपने फर्स्ट ईयर में पाइथन किया तो क्योंकि पाइथन क्या करती है आपके लिए रास्ते बहुत ओपन कर देती है. आप अपने थर्ड ईयर में एमएल में जाना चाहते हो, क्लाउड में जाना चाहते हो, डीआई में जाना चाहते हो, डेटा साइंस में जाना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं क्योंकि लाइब्रेरीज इतनी है इसकी, ठीक है.
बाकी अगर आप C++ उसके बाद जैसे आपने देखिए कोई भी प्रॉब्लम मैंने आपको दिया, अगर आप उसे पाइथन में कोड कर पा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन आपको पता है, लॉजिक आपका बिल्ड है। आपको लगता है मेरे को इसको फास्ट बनाना है, थोड़ा सा और तेज करना है, मतलब मेरा सॉल्यूशन फास्ट नहीं है, ठीक है, वो पाइथन की वजह से स्लो हो रहा है, ठीक, तब आप एक लैंग्वेज जावा या C++ कोई भी पकड़ सकते हो और उस कोड को आसानी से उस कोड में कन्वर्ट करना सीख सकते हो। जैसे मैंने डिक्शनरी यूज किया हुआ है, उसमें आप हैश मैप यूज कर सकते हो, राइट, ट्री मैप यूज कर सकते हो, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार अगर आपने कोई भी लैंग्वेज, मतलब देखो सॉल्यूशन तो एक बार दिमाग में आना है, वो किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने कर लिया तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो आपको अगर जर्नी बहुत स्मूथ रखनी है, बहुत अच्छी से रखनी है, मतलब आज की डेट की बात कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता एक साल बाद ये क्या हो सकता है, इट वुड चेंज, लेकिन आज की डेट की बात करूं तो स्टार्ट यू लर्न पाइथन इन योर फर्स्ट ईयर, यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग इन योर सेकंड ईयर, राइट। एंड व्हेन यू एंटर टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थर्ड ईयर में, जो मैंने बात किया, जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होगे उस टाइम पर जो कोड करो और उसको कन्वर्ट करना सीख जाओ किसी एक लैंग्वेज में, जावा में या पाइथन में, तो आपकी सब चीज हो गई, आपका डेवलपमेंट भी हो जाएगा, आपका जो है सीपी भी हो जाएगा, दोनों चीज आपका हो जाएगा। और जब आप कंपनीज आए तो अगर कोई कंपनी पाइथन अलाउ करी तो पाइथन में सबमिट कर दो, कोई को नहीं अलाउ करी तो आप जावा, तो आपको आती है जावा में आप सबमिट कर दो, तो आपके लिए सारे रास्ते ओपन हो